Namaskar and good morning to all. I, Dr. Vichitra Chaudhary, welcome you on the fifth lecture of the series of lecture NCT has organized. गत 17 दिनों से एनसीटी ने कई प्रतियोगिताओं का आयोजन किया और लेक्चर सीरीज का आयोजन किया। ये 5 लेक्चर सीरीज के आज हम 5वें चरण पे पहुंच गए हैं एंड टुडे वी हैव मिस्टर नीरज गोयल who is a yoga professional and therapist from Kaivalya Dham with us as a speaker. I request our regional director SRC Shri Preetham Singh sir to facilitate our speaker by presenting the memento. I request Neelam Sharma ma'am to present the bouquet to our speaker of the day. I welcome our regional director, Shri Preetham Singh sir, Shrimati Neelam Sharma ma'am, and all the participants present here, and all the audience who are watching us live through a YouTube video. Now I request our regional director, Shri Preetham Singh sir, to share his thoughts on yoga with us. Good morning, everyone. In continuation of our series of yoga, first of all, I would like to welcome our eminent personality from Kaivalya Dham. So, welcome on behalf of NCT family. वैसे आप सबको पता है कि हम ये जो योग दिवस इसलिए मना रहे हैं क्योंकि ये जो योग है ये हमारे हिंदुस्तान के एक पहचान है, एक विश्व गुरु के रूप में हमारे यहाँ से दूर दूर तक विश्व में इसको देखा गया है। इसीलिए नहीं कि इसको हम उससे जोड़ना चाहते हैं जो आज हमें अपने लिए अपने जो जीवन है, जो रोज के जीवन है, उससे किस प्रकार के हम अपने आप को एक अच्छे रास्ते में चले, पवित्र रास्ते में चले, मन को और पूरे यूनिवर्स को जोड़े। ये जो सब जो आप सुनने में आ रहे हैं, सबको योग के बारे में कुछ ना कुछ पता है और योग तो एक महासागर है जिसको हम इंग्लिश में कहते हैं ओशन। जितने ज्यादा अंदर आप घुसेंगे उतने ज्यादा आपको पर्ल मिलेगा, यानी कि दैट इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट। एंड आई पर्सनली बिलीव दैट इट्स not just exercise but is something more than spiritual world which you would like to connect with the person, your person almighty which we have created this world, and this is the only way which you can give yourself with time. And I have really heard about some of the eminent personality that ki jo this is the only way where we can give time for ourselves. We are so busy for our day-to-day work, you know. Even you do exercise, somebody has said, if you want to become a fit, you can go and climb mountain. If you want to become success, work hard like a, your machine. But if you want to have something different, some kind different from this universe, which you want to feel that is life, that the creator has created, you really want to feel the blissful, and I think the mantra is yoga. तो योग जो है हमारे सिर्फ शरीर के फिटनेस के लिए नहीं है, तो मुझे लगता है ये हमारी आत्मा के लिए है, ह्यूमैनिटी के लिए है और भविष्य के लिए है। So we are very thankful to our team, which were led by Sri Anil and all the companion and all other faculty members who are present here. And every day it's a kind of thing. This has been spread almost in all over the country through our channel as well as directly and indirectly. I would like to thank everybody who is present. But let's not forget that
This is only just part of the program. We carry on throughout our life. Thank you. Dhanyavad. Thank you, sir. Sir, you rightly said that Yog is Yog एक महासागर है, and it connects us with the Almighty. Now, continuing with this, the importance of yoga. Now, I request today we have our speaker with us, Mr. Neeraj Kumar Goel, who is the yoga professional and therapist from Kaivalya Dham. He has done MSc in Yoga and PG Diploma in Yoga Education from Kaivalya Yoga Research Institute. From the year 2001 to 2005, he has been deputed as Yoga Representative at Indian Culture Center, Indian Embassy, Jakarta, Indonesia, from Indian Council for Cultural Relation. From 2015 onward, he has been associated with QCI and YCB as a lead examiner and observer under the scheme of Ministry of Ayush. He is specialized in conducting yoga workshop for corporate executives for regular yoga training, lifestyle correction, distressing, and chronic fatigue syndrome. He's having an experience of 25 years in teaching and spreading awareness about the benefits of yoga across the spectrum of ages. Presently, he is working as a yoga teacher at the Sri Ram School, Gurgaon. Now I welcome you, sir, to enlighten us about the traditional approach of yoga in modern time. Sir. Thank you, sir. Thank you, ma'am. Thanks to the National Council for Teachers Education, staff director, and all the colleagues. Let us start first with the prayer. May I request everyone to sit upright, join the hands. Yogena chittasya padena vacham malam sharirasya cha vedakena yopakarottam pravaram muninam anjalim pranjaliranatosmi. Om Sehna Bhavato Sehna Bhunakto Sahaviryam Karvavahai Tejasvino Vadhitamastu Ma Vidvishavahai. Om Shanti Shanti Shanti. Slowly open your eyes. So hope everyone is relaxed. Now, first of all, look at each other and smile. Look at each other. To your left, to your right, and give a smile. Are you happy? Sure? You feel others are happy? Look at others. Give a smile. Sometimes a smile without reason. It is also yoga. See, in the modern era, I should say everyone is so busy in one work or the other. Whether it is official, whether it is social, personal, or anything else. We do not know the time comes and we become stressed. Without knowing. We even don't realize. If we look at the mirror, sometimes we feel that, oh, I'm not same as I was in the morning if I look in the evening time. Why? Means somehow the pressure from the external world or from the colleagues or from the office or from different manners, it is giving so much pressure to us
that we are not feeling that we are in a natural state. Does it happens to us sometime or not? Yes or no? True? So as sir said, yoga is not only about doing something in terms of exercise. Rightly. Yoga is a very vast subject. And I should not explain what yoga is. Because everyone knows the word yoga, and I think in a day, 24 hours, at least once, twice, or even more, we heard or we say the word yoga. So I'm not going to explain the yoga is from the terminology used and to union, body, mind. No, nothing. I'm going to talk about, as my topic is the traditional approach in modern times. Whatever we are, we all accept that we are connected with our roots. हम जिस स्थिति में हैं, हम सभी लोग ये मानकर चलते हैं कि हम अपनी जड़ों से जुड़े हुए हैं. ये तो सब मानते हैं. I don't want to make it like a lecture and then I'm talking and you're just listening and okay, 30 minutes over and we finish it. If we accept, yes, otherwise we change. हम अपनी जड़ों से जुड़े हुए हैं या नहीं? सभी जुड़े हुए हैं, चाहते भी हैं. जो आज हमारी जनरेशन है या मेरे से आगे की जनरेशन है, वही चाहते थे कि हम अच्छे संस्कार लें. हमारी जनरेशन ये चाहती है कि जो आगे की जनरेशन है वो अच्छे संस्कार ले. वो कब होगा? जब हम अपनी जड़ों से जुड़े रहेंगे. इसका मतलब हम अपने संस्कारों से जुड़े रहेंगे. एंड हाउ टू? वी हैव टू just go back and see what the tradition says. Definitely there is a time where a lot of things changes. That is a requirement of the time. That is a nature. There is a law. Everything changes. But what the tradition says, in yoga tradition, there is a name which is called Maharshi Patanjali. I think you all might have heard. And there is a treatise on his name called Patanjali Yoga Sutra. It is not, he's not the originator. Somehow it has been called that Lord Shiva was the originator. But he was a person who has systematized yoga first time and given in terms of a philosophy. We all know that Bharati Darshan has 6 philosophies, aesthetic. 6 Bharati Darshan hai. One is Yoga Darshan, which is called Patanjali Yoga Sutra. There are 4 chapters: Samadhipad, Sadhanpad, Vibhuti, and Kaivalya. Whatever the yoga we talk about, whether it's a mantra yoga, hatha yoga, laya yoga, bhakti yoga, anything, the ultimate aim is the supreme reality, to connect ourselves with that. That is the supreme reality. What we have to do? We have to go through one path, other path, or anyone. So this treatise, the first sutra says, Ath Yoga Nushasanam. And which is the very key principle in modern times. The meaning is discipline. You see, in your lifestyle, the discipline has the most important, or we should say it's a prerequisite. अगर हम योग की बात करते हैं या हम किसी भी विषय की बात करें, सबसे पहला जो एस्पेक्ट है वो है अनुशासन. किसका अनुशासन? किसका अनुशासन? अपने आप का अनुशासन. अभी हमने एक प्रार्थना की थी, ओम सहना भवतु. क्या कर रहे हैं हम प्रार्थना में? We are respecting to the Almighty, but before that, we are respecting ourselves. I am sitting straight, I am closing my eyes, I am respecting myself.
and I'm trying to connect myself to the ultimate. अपने आत्मा को जीवात्मा से कनेक्ट करना. सेम अनुशासन. किसके लिए पहला अनुशासन? अपने लिए. अगर हम अनुशासित हैं तभी हम दूसरों से कुछ एक्सपेक्ट कर सकते हैं. ऐसा तो नहीं है कि आज मैं अनुशासन में नहीं हूं लेकिन मैं बाकी 50 लोगों को चाहता हूं कि वो अनुशासन में रहें. ऐसा तो होता नहीं. जो आपका व्यवहार है वही दूसरे फॉलो करते हैं. हम बच्चों से क्या कहते हैं कि जो आप कर रहे हैं वही बच्चे इमिटेट करते हैं, नकल करते हैं. हम तो घर पे बच्चों को कुछ अलग से नहीं सिखाते कि नहीं हम टीवी देख रहे हैं और आपको टीवी नहीं देखना चाहिए. हम तो कई बच्चों को ऐसा नहीं कहते. अगर हम बच्चों से कहना कि हम बच्चों टीवी मत देखो तो हमें भी वो चीज फॉलो करना होगा. एटलीस्ट उनके सामने तो करना ही होगा. सही बात है ना? तो अनुशासन अपने लिए. अगर हम अपने आप में अनुशासन में हैं तो हम दूसरों से उस चीज को अपेक्षित कर सकते हैं. अब अगर हम अनुशासन की बात करते हैं तो क्या यह अनुशासन सिर्फ व्यवहार में है, अपने कर्म में है, अपनी भाषा में, अपनी बोली में है? सभी चीजों में. एक्शन, डीड एंड स्पीच, जो भी हम करते हैं वो सभी चीजों में होना चाहिए. किमर्थम क्रियते क्रिया. हम कोई भी एक पर्टिकुलर चीज हम क्यों करते हैं? हम ऑफिस आते हैं, हम क्यों आते हैं? देयर इज ए पर्पस. हम कोई अभ्यास करते हैं, हम कोई खाना खाते हैं, हम कुछ भी कोई एक्टिविटी करते हैं. फॉर एवरीथिंग देयर इज अ रीजन. किमर्थम क्रियते क्रिया. फॉर व्हाट रीजन वी आर डूइंग अ पर्टिकुलर एक्शन. और अब तो हम सभी लोग शायद हेल्थ कॉन्शियस इतना है कि हर व्यक्ति जानता है कि ये चीज सही है और ये चीज गलत है. सब जानते हैं लेकिन क्या हम उसको फॉलो करते हैं? वो इंपॉर्टेंट है. सिर्फ जानना इंपॉर्टेंट नहीं है. इसीलिए योग कहता है सबसे पहला एस्पेक्ट है आपको जानना है. टू नो. आपको नॉलेज होना चाहिए. अगर बच्चे को हमने एक किताब दी है पढ़ने के लिए तो पहले उसको पढ़ना आना चाहिए कि क्या उसका कंटेंट क्या है. सो फर्स्ट थिंग इज टू नो क्या है. उसके बाद क्या है? उसको अभ्यास करना. अगर हमने कोई पाठ पढ़ा है तो उसको रिपीट करना. जब तक उसको हम प्रैक्टिस नहीं करेंगे भूल जाएंगे या वो हमारे व्यवहार में नहीं आएगा. और उसके बाद थर्ड पार्ट आता है उसका अनुभव करना, एक्सपीरियंशियल पार्ट. एंड द लास्ट पार्ट कम्स विच इज कॉल्ड बिकमिंग पार्ट, हैपनिंग पार्ट. आपको बनना, जानने से लेकर जानना, उसको करना, उसका अनुभव करना और उसको हो जाना, उसमें समा जाना. दिस इज द प्रोसेस. कि जानने से लेकर के अनुभव करने तक, अपने आप को उसमें समाहित करने तक आपको वो प्रोसेस में आना है. अगर हम सिर्फ पढ़ते पढ़ते रहें तो नहीं. एक ही चीज करने से नहीं होगा. पूरा प्रोसेस हमें फॉलो करना होगा. तो महर्षि पतंजलि का जो योग सूत्र है उस बेसिकली दिस इज कॉल्ड अ बिहेवियरल साइकोलॉजी. अगर उसको हम आज के मॉडर्न टाइम्स में देखें तो उसकी हर एक बात आज के समय में सटीक बैठती है. उन्होंने एक बात कही है, अभ्यास वैराग्याभ्याम तन्निरोधः. हमें क्या करना है? जो भी हमारे चित्त की, हमारे माइंड की जो वृत्तियां हैं, जो हमारा व्यवहार है, द बिहेवियर ऑफ द माइंड विच वी हैव टू कंट्रोल. जैसे व्यवहार को कंट्रोल करने के लिए हमें अभ्यास करना है, हमें वैराग्य करना है. अभ्यास किस बात का? कि हम उन वृत्तियों को हम कहीं ना कहीं अपने आप में कंट्रोल कर सकें, उन पर नियंत्रण पा सकें. इसके लिए बहुत एक सुंदर उन्होंने एग्जांपल दिया है जिसे कहा है मैत्री करुणा मुदितोपेक्षाणाम. देयर आर 4 कंडीशंस. ये हम बात कर रहे हैं व्यवहारिक दृष्टिकोण से, सिर्फ आसनों की या प्राणायाम की बात नहीं कर रहे हैं. अगर कोई व्यक्ति सुखी है तो हम क्या सोचते हैं? एक जनरल टेंडेंसी आज ह्यूमन बीइंग की है कि हम क्यों दुखी हैं? क्योंकि पड़ोसी सुखी है. नॉर्मल चीज है. क्यों? क्योंकि सामने वाले के पास वो कुछ है जो हमारे पास नहीं है और जो हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं. अगर हमने देखा कि उसके पास 5 बॉटल हैं तो मेरे पास भी होनी चाहिए. लेकिन क्यों? क्या हर व्यक्ति की मनोदशा एक सी है? क्या हर व्यक्ति की जरूरत एक सी है? नहीं.
तो कहते हैं अगर कोई व्यक्ति सुखी है तो उसके प्रति हम मित्रता का भाव रखें, मैत्री भाव रखें, जेलसी नहीं हो। अगर कोई व्यक्ति दुखी है तो उसके प्रति हम करुणा रखें, करुणा का भाव, हम एम्पैथी कर रख सकें। कम से कम इतना तो हो कि अगर कोई व्यक्ति दुख में है तो जितनी हमारी क्षमता है हम उसको सहायता कर सकें। अगर कोई व्यक्ति पुण्य का काम कर रहा है, अच्छे काम कर रहा है, तो हम उसको प्रोत्साहित करें, मुदित भाव रखें, आनंद का भाव रखें। और अगर कोई व्यक्ति अपुण्य, कोई बुरे काम कर रहा है तो उसकी उपेक्षा करें, हम उसमें इन्वॉल्व नहीं हो, क्योंकि हम हर किसी को सुधार नहीं सकते, लेकिन हम उसकी उपेक्षा करें। ठीक है, वो अपने हिसाब से कर रहा है, हम उसमें अपने आप को इन्वॉल्व नहीं करें। सो मैत्री करुणा मुदितोपेक्षाणाम सुख दुख पुण्य पुण्याणाम भावना तश्चित प्रसादनम। ये सब करने से, चारों बातें करने से क्या होगा? जो हमारा मन है, जो हमारा अंतःकरण है, जिसे योग की भाषा में कहा गया है चित्त। चित्त जो है वो तीन चीजों का मिलन है, मन, बुद्धि और अहंकार। बुद्धि इज द फैक्टर which discriminates, which decides whether it is right or wrong। जैसे हमने भी बात की थी कि हम जानते हैं कि ये अच्छा है और ये बुरा है, तब भी हम क्या करते हैं? क्या अच्छा ही हमेशा करते हैं, बुरा नहीं करते? ऐसा नहीं होता। कई बार हम जानते हैं तब भी हम गलत करते हैं। तो जो डिस्क्रिमिनेशन पावर है दैट इज कॉल्ड बुद्धि। क्योंकि मन तो क्या है? चंचलम ही कृष्ण मनहा। मन जो है चंचल है, हमेशा हमेशा ड्युअलिटी में रहता है, ये करूं ये करूं ये करूं वो करूं नहीं। तो कहते हैं चित्त का प्रसादन, जो चित्त की प्रसन्नता है, जो चित्त का जो स्वाभाविक स्वरूप है, उसको जानने के लिए हम इन चार बातों का, मैत्री करुणा मुदिता उपेक्षा, इन चार बातों का हमेशा ध्यान रखें। ये जो बात है ये कहते हैं महर्षि पतंजलि अपने राजयोग में। लेकिन अगर आप देखें आज के समय में, जो मॉडर्न टाइम में अगर हम देखें तो बहुत ज्यादा पॉपुलैरिटी है हठ योग की। अगर आज हम योग की बात करें तो कोई भी व्यक्ति पर्वतासन कर रहा है, वृक्षासन कर रहा है, कोई एक आसन कर रहा है, कोई एक मुद्रा में है, तो हम कहते हैं हाँ भाई ये बहुत अच्छा योगी है। तो वो सब जो ये सारी जो एस्पेक्ट है वो आए हैं हठ योग से। भगवत गीता में जो योग के बारे में, जो बैठने के बारे में कहा गया है, वो है समम काय शिरोग्रीवम धार्यन्न चलम स्थिरः। आपको हमेशा सीधे होकर बैठना है। और ये तो बेसिक है। अगर आप देखें कोई भी व्यक्ति किसी से ये नहीं कहेगा नहीं आप सीधे बैठे हो, ये ठीक नहीं है, आप ऐसे बैठो। हम कई बच्चों को घर पे नहीं कहेंगे, क्यों? क्या क्या लॉजिक है उसके पीछे? कोई बताएं क्या लॉजिक है? हम क्यों कहते हैं कि सीधे बैठना चाहिए? व्हाट इज द लॉजिक? कोई भी एक प्लीज। तो कॉमन सी बात है, बताइए सर, क्यों सीधे बैठना चाहिए? हम कभी किसी को नहीं कहते कि नहीं झुक के बैठो, क्यों सीधे बैठना हुआ? बड़ा मुश्किल है सीधा बैठना। सीधे बैठने से हमारी पॉजिटिव एनर्जी का उत्थान होता है। आप बताइए। हाँ सर, स्ट्रक्चर भी ठीक रहता है बिल्कुल सीधा बैठने से, मतलब बॉडी पोस्चर। बहुत सारे फैक्टर्स हैं। एक कहावत है, आपका पीठ सीधा है तो आप यंग हैं, आप बूढ़े हो गए हैं तो आप झुक गए हैं। आई एम नॉट मेकिंग कमेंट, डोंट टेक इट इन नेगेटिव वे। अगर आप सीधे बैठे हैं तो आपका जो सर ने कहा एनर्जी का जो प्रवाह है, अगर हम हठ योग की दृष्टि से देखें तो जो कुंडलिनी जागरण है वो मूलाधार से ऊपर की तरफ है, स्वाधिष्ठान, मणिपुर, अनाहत, विशुद्धि, आज्ञा और सहस्रार। जब तक आप सीधे नहीं बैठे हैं, ये तो बात हो गई स्पिरिचुअल। लेकिन अगर हम इन जनरल देखें फिजियोलॉजिकली, अगर आप सीधे बैठे हैं तो आपका ब्रीदिंग पैटर्न हमेशा नॉर्मल है। अगर आप झुककर बैठे हैं तो आपका लंग कैपेसिटी, जो
नॉर्मल है वो आप यूज नहीं कर रहे हैं। आप लोग ट्राई कर सकते हैं। अगर आप झुककर बैठे हैं और कोई कहे आपको चलो लंबा गहरा सांस लो, और वही चीज आप सीधे बैठकर लेंगे, तो उसमें अंतर होगा। लंबा गहरा सांस लेने में तो होगा ही, जो आप सामान्य श्वास ले रहे हैं उसमें भी होगा। आप जानते हैं आपके लंग्स में सबसे छोटा जो सेल है, दैट इज कॉल्ड एल्वुलाई, विच इज रेस्पॉन्सिबल फॉर केमिकल रिएक्शंस इनसाइड विद द ब्लड। आपके लंग्स में कितने परसेंट एल्वुलाइज काम करता है? इफ इट वर्क्स more than 60 to 70%, it is healthy. But there are a lot of conditions in which that ratio is very, very less. बहुत सारे लोग हैं जो अपने श्वास को पूरा लेते ही नहीं है या छोड़ते ही नहीं है। इसीलिए अगर हम किसी भी योग को देखें, चाहे वो हठ योग हो चाहे राजयोग हो, हर एक योग में प्राणायाम पर विशेष ध्यान दिया गया है। उसका एक अलग महत्व है। इसीलिए क्योंकि प्राण जो है वही आपके शरीर और मन को कनेक्ट करता है। दैट इज अ ब्रिज। इफ वी से इन द फिजियोलॉजिकल लैंग्वेज, ब्रेथ इज द ब्रिज बिटवीन बॉडी एंड माइंड। आप आराम से बैठे हुए हैं, आप कोई भी अपना कार्य कर रहे हैं, एक जरा सा कोई विचार आपके मन में आ जाता है या आपको आके कोई एक छोटी सी न्यूज देता है विच इज नॉट फेयर टू यू, आप उस छोटी सी न्यूज से परेशान हो जाते हैं। यू कम्स इन एंजाइटी। As a result, you start making hyperventilation. आप शॉर्ट ऑफ ब्रेथ हो जाता है। आपने फिजिकली कुछ नहीं किया, तब भी उसका प्रभाव एकदम से आपके श्वास पर आ जाता है। इसका मतलब जो मन ने परसीव किया है वो आपके बॉडी में इमीडिएटली रिएक्ट कर रहा है इन टर्म्स ऑफ डिस्टर्बेंस इन द ब्रेथ। और वो सभी के साथ होता है। अगर आप कहीं दौड़ रहे हैं, आप तेज तेज सांस लेते हैं, क्या कोई आपसे कहता है तेज सांस लेने के लिए? नहीं कहता। वो क्यों होता है? नेचुरल प्रोसेस। जैसे आप तेज भागना शुरू करेंगे, ऑक्सीजन डेट कंडीशन आएगी, आप तेज तेज सांस लेना शुरू करेंगे, रिसेप्टर सेंटर्स जो हैं वो फास्ट ब्रीदिंग मांगेंगे। आप बैठ जाएंगे, ब्रीदिंग स्लो हो जाएगा, आप लेट जाएंगे और स्लो हो जाएगा। इसका मतलब कहीं ना कहीं कनेक्शन है आपके मन की स्थिति का, आपके शरीर की अवस्थाओं का और श्वास प्रश्वास का। जब ये सभी चीजें कंट्रोल में हैं, जब एक समावस्था में है, तब हम बात करते हैं आगे स्पिरिचुअलिटी की, आत्म तत्व की बात करते हैं। तो बहुत सारे ग्रंथ में बहुत कुछ कहा गया है। जैसे एक ग्रंथ है हठ योग का जिसका नाम है घेरन संहिता। अगर किसी ने नाम सुना हो, घेरन मुनि के द्वारा उन्होंने एक बहुत सुंदर श्लोक दिया है। नास्ति माया समः पाशो, नास्ति माया समः पाशो। क्या मतलब? माया मतलब इल्यूजन। माया से बड़ा कोई बंधन नहीं है। नास्ति योगात परम बलम, योग से बड़ा कोई बल नहीं है। बल्कि मतलब फिजिकल बल नहीं, आत्मिक शक्ति। नास्ति ज्ञानात परो बंधुर, ज्ञान से बड़ा कोई मित्र, कोई बंधु नहीं है, कोई फ्रेंड नहीं है। न अहंकारात परो रिपुः, और अहंकार से बड़ा कोई शत्रु नहीं है। और जो आज के समय में ये मॉडर्न टाइम में एकदम सटीक बैठता है। कहीं ना कहीं हम अपने अहंकार में हम ऐसा कुछ अपने लिए या दूसरों के लिए करते हैं जो कभी भी फॉर टाइम बीइंग ठीक हो सकता है, बट नॉट फॉर लॉन्ग रन। अब देखिए, सभी लोग अपने सामान्य जीवन में हर एक की अपनी आवश्यकताएं हैं, हर एक की अपनी मूलभूत आवश्यकताएं हैं। क्या आप जानते हैं आवश्यकताओं में और इच्छाओं में क्या अंतर है? एक बहुत बड़ा डिफरेंस है आज के समय में। योग इसके ऊपर बात करता है, द डिफरेंस बिटवीन नीड्स एंड डिजायर्स। किसी कवि ने बड़ा सुंदर कहा है, तृष्णा न जीर्णानी, जब तक है दम में दम, इतना उठा चले हैं कि बोझल हुए कदम। तृष्णा मतलब समझते? इच्छाएं, डिजायर्स, विच आर एंडलेस।
कभी इच्छाओं की पूर्ति होती नहीं है। जो बेसिक रिक्वायरमेंट है, जो 50 साल पहले की जो रिक्वायरमेंट थी और आज की रिक्वायरमेंट है, उसमें बहुत अंतर है। हम उस समय की बात को लेके नहीं चल सकते, लेकिन आज के समय के अनुसार किन चीजों की आवश्यकता है, जो बेसिक नीड्स हैं, वो व्यक्ति के पास होनी चाहिए। लेकिन जब हम उनसे ऊपर जाते हैं, कहीं कुछ अंत ही नहीं है। और जब हम वो नहीं पाते हैं, तो क्या होता है? स्ट्रेस होता है। सही बात है या नहीं है? पीछे जो बैठे हैं, जो चीज हमें चाहिए, जब हमें लगता है कि मेरे पास आज 50,000 का फोन है और सामने वाले पास 1.5 लाख का फोन है, मेरे पास भी वो होना चाहिए। जब मैं बार बार उसी बात को सोचता हूं, तो क्या होता है? मुझे स्ट्रेस होने लगता है। मुझे पता है कि आज 10,000 के सिर्फ काम चल सकता है, लेकिन हमने अपनी इच्छाओं को प्रबल कर दिया है। एक और एग्जांपल, अगर हम, मुझे बताइएगा समय कितना है मेरे पास? अगर हम पका के खिलाएंगे। थोड़ा सा अभ्यास भी कराएंगे। हठ योग का एक ट्रेडिशन है जिसमें एक बड़ा सुंदर कॉन्सेप्ट दिया गया है। जब कोई व्यक्ति योग का अभ्यास करता है, जिसे कहते हैं साधना करते हैं, तो उसमें कॉन्सेप्ट आता है साधक तत्व और एक कॉन्सेप्ट आता है बाधक तत्व। साधक का मतलब जो साधना में हेल्प करे वो साधक तत्व, जो बाधा ऑब्स्टिकल बनाए वो बाधक तत्व। तो 6 बाधक और 6 साधक तत्व बताते हैं वो, जो कि आज के समय में बड़े सटीक बैठते हैं। पहला है अत्याहार। मैं किसी विशेष के ऊपर कमेंट नहीं कर रहा हूं। अत्याहार, मैं भी उसी में हूं। हम कभी ना कभी स्वाद के चलते जितना हमें भोजन चाहिए उससे ज्यादा हम कर लेते हैं। एक साइकोलॉजिस्ट ने कहा भी है कि हर व्यक्ति का एक सैचुरेशन होता है, हर चीज में होता है। वो सैचुरेशन इज अ वर्ड फ्रॉम द केमिस्ट्री। हाँ, मुझे भूख लगी है, मैंने खाना शुरू किया, 2 चपाती 3 चपाती जो भी मैं खाता हूँ मैंने खा लिया, मेरा पेट भर गया। अब मेरे साथ वाला मुझे कहता है थोड़ा सा गुलाब जामुन भी है, मेरा पेट तो भर चुका है, लेकिन मैं फिर भी एक गुलाब जामुन में ले लेता हूँ, खा लेता हूँ। उसके बाद मेरा पेट भर गया, मेरी तसल्ली भी हो गई मुझे, चलो मैंने मीठा भी खा लिया। उसके बाद कोई आइसक्रीम भी ले आता है, मैं थोड़ी सी आइसक्रीम भी खा लेता हूँ, मैं उसके बाद कुछ और भी खा लेता हूँ, एक पान भी खा लेता हूँ, कुछ मैं, आई एम ट्राइंग टू मेक माई सिचुएशन एट पीक। एज ए रिजल्ट आई एम ओवरलोडिंग माई डाइजेस्टिव सिस्टम। और सभी को पता है डाइजेस्टिव सिस्टम ओवरलोड होने से सभी बाकी सिस्टम्स पे एडवर्स इफेक्ट करेगा। जब तक वो डाइजेस्ट नहीं होगा, हमें ना शरीर से ना मन से ईज नहीं होगा, आराम नहीं होगा। तो अत्याहार, अगर आप अभ्यास करते हैं या अभ्यास नहीं भी करते हैं, अपने सामान्य जीवन में है, तो वो कॉन्सेप्ट हमें हमेशा मानकर चलना चाहिए कि हम थोड़ा कम भी खाएं तो चलेगा। इसीलिए कॉन्सेप्ट दिया गया है मिताहार का। अगर किसी ने शब्द का नाम सुना हो, मित आहार, मॉडरेट डाइट। और आज तो सभी लोग हेल्थ कॉन्शियस बहुत ज्यादा हैं, वजन ज्यादा ना हो। कितना खाना चाहिए? मॉडरेट। सुस्निग्ध मधुर आहारा चतुर्थांश विवर्जित भुज्यते शिव संप्रीत्य मिताहार सौच्यते। जितना भोजन की भूख है उसे 1/4 खाएं। अगर 1/4 कम खाए, 1/4 कम खाएं। अगर 1/4 कम खाया है तो कोई बात नहीं, चल जाएगा आपको। आपके जो आमाशय में थोड़ा थोड़ा जगह रहेगा चर्निंग के लिए, होने दीजिए। दूसरा कॉन्सेप्ट में कहते हैं अत्याहार के बाद प्रयासश्च, एक्सेसिव एफर्ट।
which leads to stress. If it is a positive stress, stress is good. If it leads to distress, should be avoided. अगर स्ट्रेस नहीं है तो हम काम करेंगे ही नहीं. तो हर कोई देखता है, बॉस ने कहा है थोड़ा प्रेशर है तो हम काम कर रहे हैं. आज दिन में 2 प्रोग्राम करने हैं लेकिन हम 4 भी कर देते हैं क्योंकि वर्क प्रेशर है, क्योंकि हमारे अंदर कैपेसिटी है, कैपेबिलिटी है. लेकिन वो कितना स्ट्रेच कर रहे हैं, इट डिपेंड्स. और इसी को अगर हम देखेंगे अपने अभ्यास की दृष्टि से, साधना की दृष्टि से, तो जो अभ्यास में बहुत ज्यादा एफर्ट कर रहे हैं इज नॉट एडवाइजेबल. कम करें अभ्यास, थोड़ा अभ्यास करें लेकिन सततता के साथ करें, कंटिन्यूटी के साथ करें. इसलिए कहा गया है थोड़ा अभ्यास भी आप करेंगे और रेगुलर करेंगे तो ज्यादा बेनिफिशियल है. ऐसा नहीं कि हमने चलो भाई एक दिन तो हमने 4 घंटे लगातार कर लिया, उसके बाद 15 दिन छुट्टी नहीं. और हम देखें अगर इंडियन कॉन्सेप्ट में, इंडियन फिलोसॉफी में हमारे यहाँ कॉन्सेप्ट है ही नहीं कि हम ट्वाइस ए वीक, थ्राइस ए वीक, वंस ए वीक करें. नहीं, ये वेस्टर्न कॉन्सेप्ट है. हमारे यहाँ जो भी कर रहे हैं एवरीडे, नित्य दिनचर्या इसलिए बताई गई है कि हम जो भी कर रहे हैं अपने दिनचर्या में कर रहे हैं, हम कोई एक्स्ट्रा एफर्ट लेके नहीं कर रहे हैं. नहीं तो क्या होगा, वही वेस्टर्न कॉन्सेप्ट होगा, 2 दिन साइकिलिंग करना है, 2 दिन वॉकिंग करना है, 2 दिन नहीं करना है, और कुछ दिन के बाद वो छोड़ देते हैं. थर्ड आता है प्रजल्प, कम बोलना. कम बोलना मतलब मितभाषी, मीठा बोलना और कम बोलना. कम बोलने वाले ये नहीं बोलना. अगर हम योग की दृष्टि से देखें तो एक बड़ा अच्छा कॉन्सेप्ट आता है विच इज कॉल्ड अंतर्मौन. अगर आप कभी अपने आप को देखें कि क्या कभी ऐसा समय होता है कि हमें किसी से कुछ बात करने की इच्छा नहीं है, हम अपने आप में रहना चाहते हैं. कोई हमसे कहता है भाई ठीक है बात करो, नहीं मुझे रहने दो भाई, मेरी इच्छा नहीं बात करने की. बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो कि अपने आप में आती हैं लेकिन हम उनको शायद अवॉइड करते हैं. तो जितना ज्यादा बोलेंगे उतना ज्यादा एनर्जी कंज्यूम होगी. सभी जानते हैं एनर्जी सेव करना है, नियमाग्रह. फोर्थ वन, एकदम से एडमेंट हो जाना कि नहीं मेरा ये रूल है तो मेरा यही रूल है. अभ्यास में नहीं, आपके दैनिक जीवन में भी नहीं. हाँ, नियम अच्छा है अनुशासन के लिए, लेकिन वो नियम ऐसा नहीं हो जो आपके अपने आप की पर्सनैलिटी को डाउन करना शुरू कर दे, आपको स्वयं को बाधित करना शुरू कर दे. ऐसा नियम नहीं. उसके बाद जन संघर्ष, बहुत ज्यादा लोगों से मिलना जुलना. वो शायद आज के समय में पॉसिबल हो या नहीं हो, लेकिन अगर आप अभ्यास कर रहे हैं, और अब तो हम योगा डे सेलिब्रेट करते हैं, पूरे ग्रुप में करते हैं, इट इज जस्ट टू मार्क द ओकेजन, मार्क द सेलिब्रेशन. बट व्हेन यू डू योर ओन प्रैक्टिस, इट इज योर ओन प्रैक्टिस. आपने पहले भी सेशन किया, आपने एक प्रैक्टिस वहां से लिया, एक प्रैक्टिस यहाँ से लिया, जो आपके लिए सुटेबल है वो आप करते हैं. एंड द लास्ट वन इज लौल्यम, मीन्स मन की चंचलता. हम किसी भी चीज को सततता से करें. आज किया, 10 दिन किया, छोड़ दिया, दूसरी चीज की छोड़ दी, वन पैथी और दी अदर. नो, जो भी आप कर रहे हैं उसको कुछ समय के लिए कंटिन्यूशन में करें. वे सब हैं बाधा तत्व जिनकी आज के समय में, मॉडर्न टाइम में बहुत बहुत आवश्यकता है. आप लोगों ने लास्ट सेशन किया था हमारे यहाँ से, केवल धाम से, कुछ आप लोगों ने अभ्यास किया होगा. कोई एक अभ्यास जो आपको बहुत अच्छा लगा हो. आप लोग थे लास्ट सेशन में? कोई? चलिए कोई बात नहीं. मैं बहुत ज़्यादा डीप फिलोसॉफी में नहीं जाना चाहता हूँ. मैं थोड़ा सा आप लोगों को प्रैक्टिस में इन्वॉल्व करना चाहता हूँ. नहीं तो फिर हम ऐसा लगेगा बैठे बैठे सब लोग बोर हो गए हैं.
क्योंकि आज ये एक ऐसा डिवाइस है कि सब लोग बहुत कुछ नॉलेज जानते हैं। The lot of information is available, लेकिन हम क्या उसको अपने जीवन में अपनाते हैं, वो इम्पोर्टेंट है। आप सभी लोग अपने दोनों हाथों को सामने रखिए, सीधे रखिए। हाथ को ऐसे रखें सीधा कि आपके 4 आर्म्स पे हल्का सा आपको प्रेशर फील हो। शोल्डर से ऊपर भी नहीं, शोल्डर से नीचे भी नहीं, शोल्डर लेवल पर। ठीक है? फिंगर्स को खोलिए जितना खोल सके। नाउ स्क्वीज, मुट्ठियां बंद कीजिए एकदम टाइट। फील द स्ट्रेच, फील द कंट्रैक्शन। फिंगर्स को स्ट्रेच कीजिए। अपने फिंगर्स को अपनी तरफ हल्का सा कॉन्ट्रैक्ट करके रखना है रिस्ट से। अगेन स्क्वीज, स्ट्रेच, once again stretch and squeeze, relax। इतना देर एक ही स्टेज में बैठने के बाद एक छोटा सा एक्टिविटी किया, लेकिन हमें लगा हुआ कुछ शोल्डर्स पे कुछ हुआ है, कुछ आर्म्स पे, 4 आर्म्स पे, रिस्ट पे, पाम्स, फिंगर्स पे कुछ तो हुआ है। थोड़ा सा एक एनर्जी वो हम फील कर सकते हैं। सभी लोग दोनों हाथ रखें नमस्ते पोजीशन में और इस तरह से रखें कि आपके 4 आर्म्स स्ट्रेट रहें, एल्बोज डाउन नहीं जाएं, स्ट्रेट जाएं, सामने देखें और बिल्कुल धीरे धीरे हाथों को ऊपर लीजिए। बिल्कुल धीरे धीरे, धीरे धीरे हाथों को ऊपर लीजिए। दोनों हाथ फेस के सामने। अपने एल्बोज को साइडवेज करते हुए दोनों हाथों को सिर के ऊपर ले आइए, सिर के ऊपर। थोड़ी देर यहीं पर रोक कर रखिए। जितना हो सके अपने एल्बोज को साइडवेज स्ट्रेच करें। फील द स्ट्रेच, फील द एक्सपांशन टू योर चेस्ट। और अब धीरे धीरे दोनों हाथों को सीधा करें ऊपर, बिल्कुल धीरे धीरे। दोनों हाथों को सीधा कीजिए। लेट द आर्म्स बी इन टच विद द ईयर्स इफ पॉसिबल। डोंट ओवर स्ट्रेच, डू एज पर योर कैपेसिटी। सांस चलने दीजिए। हेड स्ट्रेट, चिन स्लाइटली अप एंड देन स्लोली डाउन। उसी तरह से एल्बोज को साइडवेज करते हुए स्लोली मूव योर हैंड्स ओवर द हेड। नाउ मूव देम डाउन। बिल्कुल धीरे धीरे फेस के सामने से लाते हुए हाथों को नीचे लाएं, up to the chest level, and then release. Now close your eyes, hands on your knees. Sit upright and feel what happens to your shoulders. आपके कंधों में आप क्या अनुभव करते हैं उसको जानिए। Now slowly open your eyes. अपने दोनों हाथों को साइड में रखिए। चेयर बैठ के शायद थोड़ा सा डिस्कम्फर्ट रहे, हाथ थोड़ा आगे भी कर सकते हैं। नाउ ब्रीदिंग के साथ शोल्डर्स को श्रग कीजिए। ब्रीद इन एंड श्रग योर शोल्डर्स। Breathe out and drop. Breathe in, breathe out, drop. Breathe in, shrug, and breathe out. Relax. छोटी छोटी सी एक्टिविटीज हैं जो कि आप अपने वर्क प्लेस पे भी थोड़ा समय 2-3 मिनट 5 मिनट का समय निकाल के कर सकते हैं। जैसे सर ने शुरू में कहा था कि सिर्फ एक्सरसाइज करना ही योग नहीं, लेकिन आज के समय को देखते हुए आधुनिक समय में जहां जिस चीज की आवश्यकता है, अगर हम थोड़ा सा अपने आवश्यकताओं के अनुसार, अपने शरीर की स्थिति के अनुसार, अपनी परिस्थितियों के अनुसार थोड़ी थोड़ी प्रैक्टिस में अपने आप को इन्वॉल्व करें। योग यही कहता है, आपको अपने आप को सुनना है, आपको अपने आप को जानना है। दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड द इनवर्ड जर्नी फ्रॉम द एक्सटर्नल वर्ल्ड।
बाहर के वातावरण से अंदर के वातावरण को जानना है। और कोई भी अभ्यास आप करते हैं, चाहे वो छोटा सा अभ्यास हो, चाहे वो बहुत समय के लिए अभ्यास हो, उसमें सजगता, अवेयरनेस सबसे प्रमुख है। फिजिकल एक्सरसाइजेज में और योग के अभ्यास में सबसे बड़ा अंतर यही है कि आप उसमें सजग हैं। अगर आप सजग हैं तो आप अपने एनर्जी को, अपना जो ऊर्जा है उसके प्रभाव को आप अनुभव कर सकते हैं। और ऊर्जा के प्रभाव का अनुभव करना ही गहराई से वही योग है। अगर आप लोगों को कोई प्रश्न उत्तर हो तो आप पूछ सकते हैं। अगर आप चाहें कुछ और अभ्यास करना तो हम अभ्यास और कर सकते हैं, आपके समय के ऊपर डिपेंड करता है। बहुत सारे अभ्यास हैं। अभ्यास करने से पहले आप ये देखें कि आपके नेक में जो पेन होता है वो क्यों होता है। उसके दो सबसे बड़े रीजन हैं। एक तो आप एक ही पोजीशन में आप लगातार बैठे हुए हैं, हमें काम है तो भी और काम नहीं है तो भी हम बैठे हुए हैं। काम है तो भी, काम नहीं है तो भी। क्योंकि मैं अपने ही बच्चों को देखता हूँ, अगर बहुत समय पढ़ाई कर लिया है, 3 घंटे 4 घंटे 5 घंटे पढ़ाई कर लिया, उसके बाद रिलैक्स करना है, तो हमें तो ये कहा जाता था, हम करते थे कि भाई बहुत पढ़ लिया, चलो भाई अब 1 घंटा या 2 घंटे पढ़ लिया, अब थोड़ा उछल कूद कर लो। अब आज उल्टा समय हो गया है, आज पढ़ लिए लेकिन अब पढ़ने के बाद थोड़ा क्या कर रहे हैं, थोड़ा रिलैक्स कर रहे हैं। अब वो इस पे रिलैक्स करना, क्या वो आवश्यक है, क्या वो आपके लिए सुटेबल है? हाँ, मैं लगता तो हमारा माइंड कहता है भाई हम रिलैक्स हो रहे हैं। माइंड रिलैक्स कहाँ हो रहा है? आप काम में बिजी थे, अब वो बिजी आप काम में से हटा करके आपने अपनी अवेयरनेस यहाँ लगा दी है, तो जो मन वहाँ पे एंगेज था वो यहाँ पे हो गया है, तो मन तो फ्री हुआ ही नहीं। दूसरी बात, आप जो भी काम कर रहे हैं, क्या आपका पोस्चर ऐसा है कि आप बहुत ज़्यादा झुक करके काम कर रहे हैं? जैसे चेयर आपकी बनी हुई बहुत अच्छी चेयर है, कि थोड़ा चेयर को आगे किया, बैक पीछे किया तो एकदम बिल्कुल सेट हो गया, लोअर बैक में कोई गैप नहीं है। आपके जो पैर हैं वो हमेशा फ्लोर पे इस तरह से होना चाहिए कि आपके थाइज पैरेलल हो, थाइज फीट दे शुड बी एट 90 डिग्री। अगर आपके फीट फ्लोर पे पैरेलल हैं या जैसे नीचे यहाँ पे एक सपोर्ट रखी हुई है, ऑलवेज बेस्ट, जिससे कि आपके थाइज पर काफ पे प्रेशर नहीं आए। और अगर उसके बाद होता है, आपको ये मान के चलिए 2 घंटे के बाद कम से कम 5 मिनट्स का ब्रेक आपको चाहिए। दैट ब्रेक अगर आप कहीं मूव कर सकते हैं, वेल एंड गुड, कहीं भी मूव करें। अगर नहीं कर सकते हैं, अपनी चेयर पर बैठें, 3-4 चीजें करें। पहली चीज, आप दोनों हाथ सामने रखें, सब लोग हाथ नीचे कर लीजिए, एक बार मुझे देख लीजिए तो आसपास वालों को कुछ गड़बड़ नहीं हो जाए। ठीक है, आप दोनों हाथ सामने रखेंगे और सिर्फ इसी पोजीशन में आप लंबा सांस लेंगे। ब्रीद इन, ब्रीद आउट। अभी नहीं करेंगे, आई कैन टेक चांस। ओके, तो आपको इसको 3 बार 4 बार रिपीट कर सकते हैं अपनी ब्रीदिंग के साथ, इनकॉर्पोरेट विद ब्रीदिंग। सेकंड, जो हमने अभी किया था, ब्रीद इन आउट, श्रग करना, दिस सेकंड। थर्ड इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, दैट इज कॉल्ड ब्रह्म मुद्रा। आपको शायद लास्ट सेशन में बताया भी होगा। एक पोस्चर होता है जिसमें आप सीधे बैठते हैं, बिल्कुल कंफर्टेबल, आप चेयर में बैठे, एंड देन यू जस्ट स्लोली मूव योर नेक, chin to the right shoulder, slowly. The movement which is very slow, but spontaneous. And when the chin comes to the shoulder, then slowly you come back like this. Then same to the left side, then coming back, then up, and then back. If you have cervical spondylitis, maybe at any region of cervical, then not to do forward bending. Otherwise, you can do all 4, right, left, up and down movement. If you have pain in the neck in terms of cervical spondylitis, then don't do the forward bending. Or you have high blood pressure, don't do forward bending. That you can do only 2 to 3 times. That is a very very good practice for even concentration. Cervical pain में भी, अगर कैसा भी cervical pain हो आपका, if you do it for 15 days religiously, it will help a lot. But the movement is not
like this, not with jerk. It has to be spontaneous. When you're sitting, shoulder should be relaxed. We can try once. Sit straight, hands drop कीजिए, head straight, close your eyes, and then slowly start moving your chin to the right shoulder. Slowly, chin to the right shoulder. Take your time, no hurry. बिल्कुल सरलता से धीरे धीरे चिन को जाने दीजिए राइट शोल्डर की तरफ, थोड़ा समय वहां रोकें, देन स्लोली स्टार्ट कमिंग बैक. कोई जल्दी नहीं. कितना स्लो आप मूवमेंट करते हैं वो डिपेंड करता है द मूवमेंट्स आर रिदमिकल और नॉट. देन सेम अदर साइड, लेफ्ट साइड, चिन slowly to the left side without putting any stress in the shoulders. Chin to the right, left shoulder. Remain there for a second and slowly come back. Let the body remain straight and then slowly move your chin up. सिर को धीरे धीरे ऊपर लें, as far as possible, comfortably. Feel the stretch to the throat region, mild contraction to the neck, and remain there for some time. And feel the ease, feel the soothing sensation. And then slowly come back. Slowly come back. Then to move the head down, chin towards collarbone. Anyone has pain in the neck should not do forward bending. Without dropping the upper body. Not to make the round shoulders. Slowly come back. Remain there for 15 seconds, eyes remaining closed. Have the experience, what you have done. Sitting quiet. Whatever the way breathing is going on, let it be natural. Slowly open your eyes. This is one of the best practice which gives results in a very short span of time. This is called Brahma Mudra. Excellent practice. आपको कैसा भी cervical pain हो, whether it is a disc problem or the compression, it will help a lot. Irrespective, you do it very slow. Any question? आपने नाम सुना होगा एक अभ्यास का, आजकल समय में बहुत पॉपुलर है, विच इज कॉल्ड भ्रामरी प्राणायाम. किसी नाम सुना है? बेसिकली हठ योग ट्रेडिशन का एक प्रैक्टिस है. स्वामी स्वात्मानंद जी के द्वारा इसको मेंशन किया गया है. वेगाद घोषम पूरकम भृंगनादम भृंगिनादम रेचकम मंद मंदम. You have to make the humming sound. There is a practice called pranava, om chanting, which is the very, very fine pious practice. A few people, those who don't chant om, can go for this practice, Brahmari Pranayam. Otherwise, everyone, there's no restriction, everyone can do it. And it is so soothing. Immediately, you are in the stress, you are in the anxiety, you are in the state of tiredness, it helps immediately. That's why it is called humming sound. You breathe in deep and start making the sound, and you try to feel that vibration.
when you close your sensory inputs, you feel the resonance with this practice. They have defined in the terms of benefits, Kachit Anand Leela, when you feel the blissful state. And how to practice? You have to close your ears with thumb. Just listen first. With thumb, but very gently, not to insert and press a lot. The first finger on your eyes, second on your soft part of the nostrils, third is over the lips, and fourth let it be wherever it is. So when you made this mudra, this is called Shanmukhi mudra. Thumb to the ears, first finger, second finger, third below the nostrils so that you feel the resonance, and fourth maybe on the lips. And then you have to breathe in deep, and after you breathe in deep, then you have to make the humming sound while breathing out. Till the time you breathe out, the sound will be there. Once breathe out is over, the sound will disappear. And then again you will do the same thing. We'll do only 3 times. Okay? Back straight, make the mudra, breathe in deep, breathe in, one more time. Breathe in, slowly open your eyes. Release. I couldn't hear the sound. Could you hear your sound? It has a lot positive effect one can do, especially those who are having the insomnia problem, which is a very common disorder nowadays. They should try this before sleeping in the night time. Do it 10 times at ease. Don't try to overstretch. जो भी आप कर रहे हैं बिल्कुल सरलता से करें. Do it 10 times and go for sleep. It will help a lot. Any question? See, a lot of practices are there. If we see, there is a practice called Tratak. A traditional practice hai. Nowadays, it is being defined in many ways. Usually, they used to say that you have to gaze at one point, means on a one flame, basically. You have to keep a candle or a diya at the level of your eyes, maybe just 1.5 to 2 feet away from your eye level. Look in the front, look at the flame, just the middle of the flame, and look at that and continuously gaze. The tradition says that you have to gaze at the flame till you feel some itching sensation in the eyes, or you start watering from the eyes. And if you start watering from the eyes, close your eyes and remain there for some time. जब आपके आंखों से पानी आने लगे तो आप आंखें बंद कर दें, या कभी आपको लगे कि आंखों में बहुत जलन महसूस हो रही है तो आप आंखों को बंद कर लें. That helps a lot in concentration. अगर आपने एक बार किया और आपका 1 मिनट में 2 मिनट में अगर आपकी आंख से पानी आ जाता है तो ठीक है. कई बार होता है पानी नहीं भी आता है, आप जितना देर आप कंटिन्यू कर सकें आप करें, फिर आंखें बंद कर लें, उसके बाद ओपन करके फिर से करें, 2-3 बार कर सकते हैं.
लेकिन जैसे आप अभ्यास करने लगेंगे तो जो वाटरिंग है वो आपका शुरू हो जाएगा, क्योंकि जो जो आपका ग्लैंड्स का सिक्रेशन है लैक्रिमल ग्लैंड्स का वो एक्टिवेट हो जाएगा। बाकी तो बहुत सारे प्रैक्टिस हैं। आपका ब्राह्मी प्राणायाम बहुत अच्छा कंसंट्रेशन के लिए, ब्रह्म मुद्रा जो करते हैं विच इज वन ऑफ द बेस्ट प्रैक्टिस फॉर कंसंट्रेशन। सिर्फ इंपॉर्टेंट है कि आप उस प्रैक्टिस को कर रहे हैं अच्छे से अवेयरनेस के साथ। अगर आप ब्रह्म मुद्रा सिर्फ 3 बार करें एंड 3 राउंड्स, इट मींस इट विल टेक not less than 3 minutes. It will take more than 3 minutes and it will help a lot. और वही अगर आपने मूवमेंट सिर्फ मूवमेंट की दृष्टि से कर रहे हैं, अगर आप सूक्ष्म व्यायाम की दृष्टि से no, then it is only movement. It is not mudra. नमस्कार आचार्य जी, मुझे ये पूछना था कि मंत्र साधना जो हम करते हैं, मंत्र साधना को योग से कैसे रिलेट कर सकते हैं या रिलेटेड होती है? Mantra sadhana is a part of yoga. If we see what is mantra, मननात त्रायते इति मंत्रः, जो आपकी रक्षा करे वो मंत्र है। इसलिए आप देखते हैं कई बार जो आप गुरु जी से मंत्र लेते हैं उसका कारण क्या है, वो यही है कि आप अपने आप को उसमें बांध सकें। हमारा मन जो है वो सब इधर उधर की बातों में सब लगा हुआ है, तो हमने एक मंत्र ले लिया, हम उसी का उच्चारण कर रहे हैं। अगर हम डीप फिलोसॉफिकल वे में देखेंगे तो हमारा जो श्वास है वो अपने आप में एक मंत्र है। हम सांस ले रहे हैं, छोड़ रहे हैं, कॉन्टिन्यूस रिदम है। इसलिए जब भी आप देखते हैं, अगर कोई भी आप ऐसी अभ्यास करते हैं जिसमें ध्यान आपको कंसंट्रेशन करना है, तो ब्रीदिंग के ऊपर कंसंट्रेशन करना सबसे इजी होता है, क्योंकि वो क्रिएटिव है, वो मूव कर रहा है। आप किस सामने ऑब्जर्व करते हैं तो आपको समय बाद लगता है कि नहीं, आपका मन इधर उधर जा रहा है, आपका श्वास जो है वो हमेशा चलता जा रहा है। अगर आप जनरल अवेयरनेस करते हैं, जो ध्यान की एक शुरुआत है, जो पहला पहलू है, आप सिर्फ अपने श्वास के प्रति सजग हैं, वही चीज मंत्र में है। आप उस मंत्र को जितना अभ्यास करते हैं सरलता से, ऐसा नहीं हम बहुत जोर जोर से करें, जितना आहिस्ता से मंत्र को करते हैं उतना उसका गहरा प्रभाव है। पर्पस तो वही है ना कि आपको उसमें बांधना है। हाँ। आप लोग पीछे कोई प्रश्न? हाँ जी, धैर्य बनाने के लिए जो हम अभी बात कर रहे थे ना, साधक तत्वों की, बाधक तत्वों की, एक 6 बाधक तत्व हमने बताए थे, ऐसे 6 साधक भी होते हैं। उसी में एक आता है धैर्य, अपने आप के प्रति विश्वास रखना। जब आपको लगता है कि आप ये कार्य कर सकते हैं, मतलब आपको अपने आप के प्रति पॉजिटिव होना है। शायद हम ऐसे एक वातावरण में अब आ गए हैं कि हमें हर चीज में लगता है कि हमने कुछ भी शुरू किया और हमें एकदम से जल्दी से कुछ मिलना चाहिए। वो एक ह्यूमन साइकोलॉजी बन गई है। शायद मे बी इट मे बी अ काइंड ऑफ पीयर प्रेशर कि दूसरा आदमी एकदम से कर लेगा लेकिन मैं नहीं कर पा रहा हूं। हर व्यक्ति अपने आप में अलग है। जैसा हम कर रहे हैं या जैसा दूसरा व्यक्ति एक बार में ही किसी को अचीव कर रहा है, दूसरा कर ले वो जरूरी नहीं है। एक क्लास में अगर 50 बच्चे हैं, टीचर पढ़ाने वाला वही है, एक बच्चे के अलग नंबर आते हैं, दूसरे कम आते हैं। लेकिन ऐसा तो नहीं होता कि जिसके नंबर बहुत अच्छे आए हैं आगे जीवन में वही सफल होगा। तो आप एक परिप्रेक्ष्य में आप आगे नहीं है तो दूसरे में हो सकते हैं। इसे हर व्यक्ति अपने आप में अलग है। इंडिविजुअलिटी इसलिए इंपॉर्टेंट है। 2 व्यक्ति 2 उंगलियां बराबर नहीं है। मैं प्रोग्राम समाप्ति से पहले मैं रिक्वेस्ट करूंगा मिस नीलम शर्मा जी से, डिप्टी सेक्रेटरी, 2 शब्द आज के आयोजन के बारे में
आदरणीय योग गुरु गोयल जी, आज आपने हमें जो मूल मंत्र दिया जीवन में आनंद प्राप्त करने के लिए, दूसरों के सुख के, जो सुखी हैं उनके प्रति हम लोग मैत्री भाव रखें, जो दुखी हैं उनके प्रति हम लोग करुणा का भाव रखें। अगर कोई पुण्य का काम कर रहा है तो हम उसमें सहयोग दें, और अगर कोई अपुण्य यानी कोई गलत काम कर रहा है तो उसकी उपेक्षा करें। मैं मानती हूँ कि आज के परिप्रेक्ष्य में ये मंत्र अगर सभी लोग अपना लें तो हम लोग बहुत आनंद प्राप्त कर सकते हैं, और जीवन में जीवन का हमारा मकसद ही आनंद की प्राप्ति। हम जो सारे कार्य कर रहे हैं वो हम जीवन में बढ़िया से अपने जीवन को व्यतीत कर सकते हैं। दूसरा, जैसे कंसंट्रेशन इंप्रूव करने के लिए आपने बताया, हमें अपने ऑफिस का कार्य कर रहे हैं, हम लोग घर का कार्य कर रहे हैं, बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं, या फिर कोई पढ़ा रहा है, टीचर पढ़ा रहा है, उसमें हमको क्या है कि कंसंट्रेशन की आवश्यकता होती है ध्यान केंद्रित करने के लिए। जैसे आपने बताया भ्रामरी, ब्रह्म मुद्रा और त्राटक क्रियाओं के बारे में आपने हमें जानकारी दी, ये हम लोगों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। साथ ही मैं अपने सहयोगी अनिल जी का भी तहे दिल से आभारी हूँ कि उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर ये जो हमारे वन सिटी में कार्यक्रम चल रहा है पिछले 17 दिन से, इस कार्यक्रम की कड़ी में आदरणीय योग गुरु योग गोयल जी को यहाँ आमंत्रित कराया, और हम सभी इससे बहुत लाभान्वित हुए। धन्यवाद योग गुरु जी, गोयल जी। अनिल जी। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं आज की जो हमारी श्रृंखला चल रही थी 1 तारीख से और 21 तारीख तक अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के उपलक्ष्य में, तो लेक्चर सीरीज की आज कड़ी का आज आखिरी दिन है, और मैं इसमें बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ हमारे सभी अधिकारी कर्मचारी जो हमसे जुड़े रहे, और हमारे पास जो भी वक्ता सीनियर गुरु और जैसे केवल ध्यान से भी हमारे पास 2 दिन वक्ता आए, और उससे पहले सौम्याचार्य जी आए, तो मैं उन लोगों का, उन सबका भी बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ कि, और हमारे दर्शक गण जो हमसे यूट्यूब से जुड़े रहे, मैं उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। और आज के समारोह में, आज का जो आयोजन हुआ उसमें श्री नीरज कुमार अग्रवाल जी केवल धाम के योग गुरु और चिकित्सक हैं। उन्होंने आज आधुनिक समय में योग का पारंपरिक दृष्टिकोण इस विषय पर अपने विचार रखे। मैं उनका बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। आज होता यह है कि हर सब्जेक्ट कुछ बच्चा कुछ चीज़ें चुन लेता है, तो मुझे एक बहुत अच्छा जो सबसे बड़ी बात लगी, उन्होंने कहा अपने आप के प्रति विश्वास रखना। ये जैसे मैं भी योग से दीक्षित और सारी चीज़ों में, वो सबसे बड़ी बात है। जो स्ट्रेस है, एंजाइटी है, जो भी हम अपने को कमज़ोर फील करते हैं, तो वो आत्मविश्वास की कमी है। मैं इसमें एक 2 लाइन कहना चाहूँगा जो मैं बहुत याद भी करता हूँ कि कहता है खुदा, जो खुद से जुदा जानो अधूरा है, दिखला दे जो खुद ही में खुदा, पीर उसको कहते हैं। तो आत्मविश्वास, ठीक है हम योगा एक्सरसाइज करें, लेकिन अपने को सपोर्ट करें किसी भी हालत, चाहे ठीक है कि कहीं पे हम कमजोर महसूस करें तो अपने को पैट करें, अपने को कहें ठीक है ऑल इज वेल। तो वो थोड़ा सा बच्चा भी होता है, आप देखेंगे छोटी छोटी चीज में उसको कुछ मिलता है खाने को, हंसता खिलखिलाता है, वो भी योग है। हम बच्चों से सीखें, अपने योगा गुरुओं से सीखें जो हमें बार बार आके कह रहे हैं। हमारा ये जो है इसमें, तो इस तरीके की चीज़ों को सीखते रहेंगे। और सबसे बड़ा चीज़ जो मैं बताऊंगा कि आत्मविश्वास वो जरूर रखें। हमारे 1 तारीख से आज 17 तारीख तक ये जो प्रोग्राम है, इसका मूल लक्ष्य भी योग के साथ आप लोगों का आत्मविश्वास बढ़ाना था कि आप ऐसे अधीर ना हो
ऐसे ही ठीक है, समस्याएं हैं सबके जीवन में, आती रहेंगी, लेकिन अपने को सफल बनाने के लिए योग से जुड़े, आत्मविश्वास जुड़े, स्वयं से जुड़े और अपने को हमेशा जो है आगे बढ़ाने का प्रयास करें। मैं इसी के साथ साथ बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ आज के वक्ता जी नीरज जी का भी और अपने सभी दर्शक गणों का बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी का धन्यवाद। बेसिकली मैं केवल धाम से बिलोंग करता हूँ और ये एक ऐसा संस्थान है, अगर आपने नाम सुना हो, 1924 में लगभग 100 वर्ष होने वाले हैं। इसकी संस्थापना की थी स्वामी कुवल्यानंद जी ने। And this is the first research institute in terms of scientific and philosophical literary. So there is a huge department of scientific research department and philosophical literary research department. They do research of yoga practices in terms of science and philosophy. They have college also where the students are being trained, and we have also a treatment center for the patients. So anyone, if you go to the Bombay side, this is the place between Bombay and Pune. It's a place called Lonavala. You might have heard the name Khandala. Khandala basically is a picnic spot, but the city is Lonavala. So this institute is situated there. This is Kaivalya Dham. So thank you very much for organizing this, and thanks to the National Council for Teachers Education, sir, ma'am, and everyone. Thank you. Namaskar.